being sad. We have always been told that being happy is the normal state and feeling any other emotion, be it sadness, anger, confusion, irritation, or anything else, is not right or not normal. So, does that mean if I'm feeling any other emotion apart from happiness, I am not content with myself? Then that also means that being born is not the most contentful thing we do with our life. But dying perhaps can be the most contentful. क्योंकि रोते रोते आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। that person will be the G, मुकद्दर का सिकंदर। अगर ये सिर्फ मेरे दिमाग के इंट्रूसिव थॉट्स होते तो शायद ये वीडियो नहीं बनता, लेकिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोरा, ट्विटर, इन सब पे इतने लोगों ने रिलेटेबल कंटेंट बनाया है विच हैज गॉटन सो मेनी लाइक्स एंड कमेंट्स। इसका मतलब कि हम सबकी प्रॉब्लम है। और ऐसे वीडियोस पे पता है सबसे कॉमन कमेंट्स क्या मिलेंगे तुम्हें? ये तो अस मूवमेंट हो गया, अस मूवमेंट। अब अगर तुम्हें ये रील्स देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, गलत चीजें क्यों प्रमोट हो रही हैं, ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई क्यों करा जा रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे, तो क्या ये सिर्फ आजकल के लोग कर रहे हैं? What about Kundan is still the hero of his small town, says the sweetest things, dances his heart out. How does all this not create a soft corner in our hearts? It tells a story of an obsessive lover who goes to extreme lengths to win the affection of a woman, including resorting to violence and manipulation. Cocktail. Veronica, the coolest girl we know, and we want to have fun like her. We want a body like her, a lifestyle like her. She does whatever she wants whenever she wants. Her local club's bouncer knows her. She's the life of the party. She's pretty even when she's miserable. Kabir Singh, he's egoistic, but he is an extraordinary surgeon with shades, beard, a cigarette between his lips, great body, and a badass soundtrack playing in the background. He is also influential among his college peers, and he does the most bizarre things which are extremely fun to watch. These characters, they were not okay. They didn't necessarily have anything easy in their life, but they were glorified. Glorified to the level it was idealistic to watch. Yeah, but Bollywood exaggerates everything. Acha, then what about the international obsession with Lana Del Rey's song and her personality? And people looking up to her because she's a sad girl, but she's beautiful. The rise of the obsession of Arctic Monkey songs. The newfound internet's favorite, Arpit Bala. No, I'm not saying there's anything wrong with Arpit Bala, but Arpit Bala is a genius to know what works on the internet, and he does exactly that. And that's why I and you watch him. आई फील ऑल दोज थिंग्स जो बचपन से रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं कि ये करना गलत है, एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करो, प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे, ये चीजें बोलो, ये चीजें ना बोलो, डोंट बी आउटलैंडिश, तो वो चीजें हम नहीं करते, बट देयर इज समथिंग इनसाइड अस हु वांट्स टू डू दैट। और ये सारी चीजें हम किसी और को करते हुए देखते हैं, तो उस इंसान को वो करते हुए देखना, इट जस्ट सैटिस्फाइड दैट इंटरनल थिंग इन अस, सो वी एंजॉय इट। एंड नो, दिस इज नॉट समथिंग जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे दिमाग में डाल रखा है। ऐसी चीजें जो हम जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। चेक द स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, सर्च सैड बॉय आवर्स और सैड गर्ल आवर्स ऑन स्पॉटिफाई एंड हाउ मेनी प्लेलिस्ट यू विल फाइंड। अब प्लेलिस्ट तो हम ही लोग बना रहे हैं ना। कुछ गाने हैं जो हाइप अप हुए हैं, जिनके लिरिक्स हम सबके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल हैं। एंड नाउ इन केस देयर इज अ कॉपीराइट थिंगी, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे कॉपीराइट लग चुका है, तो मैं वो गाना आई डोंट नो में डाल सकती हूँ नहीं, तो आई जस्ट सिंग इट आउट। Maybe my soulmate died, I don't know, maybe I don't have a soul, na 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 na. And my stupid heart, you know, I tried to let it go so many times before, na 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 na. अब ये तो हम सबको पता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एविडेंट है आज के टाइम पे, और बहुत सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, रोमांटिसाइज कर दिया जाता है, एंड इट बिकम्स एन एस्थेटिक। I don't give a shit about it. It doesn't really affect me. I don't care, bro.
और जिन लोगों को ऐसा कुछ होता भी नहीं है, they just adapt this as a personality trait, as a character, just to look cool. और जिन लोगों को एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, उनको फिर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। कहते हैं आर्टिस्ट कैन ओनली मेक आर्ट इफ दे रिमेन मेस्ड अप। जब इंग्लिश सिंगर एडल का डिवोर्स हुआ तो उनके बारे में एक आर्टिकल छपा, सैड गर्ल एस्थेटिक एंड द रोमांटिसाइजेशन ऑफ फीमेल पेन, जिसमें लोग होप कर रहे थे कि एडल का भी डिवोर्स हुआ, वो बहुत उदास होंगी, तो उस पे हमें गाने चाहिए। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मेमोरेबल सॉन्ग्स आज तक सबसे नेगेटिव थीम पे बने हुए हैं, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, क्योंकि जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो ज्यादा आर्टिस्टिक माने जाते हैं एज कम्पेयर टू हैप्पी इमोशंस। 2021 में लाना डेल रे पर एक आर्टिकल छपा, सैड गर्ल गॉन ग्लैड, और उसका मतलब ये था कि अब लाना डेल रे उतने सैड सॉन्ग्स नहीं लिख रहे हैं, तो उनके लिरिक्स अब लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे थे। और लोगों ने उस आर्टिकल पे ऐसे ऐसे कमेंट्स भी करे कि आई लाइक्ड हर बेटर व्हेन शी वाज अनहैप्पी। Sad art for many people can be a beautiful thing. In their tough times, it helps them feel less alone. Many find beauty in expressing themselves in their hard times. और कहीं ना कहीं एक आर्टिस्टिक तरीके से societal problems जो हैं, वो हम एड्रेस करते हैं. And that's why artists have a big responsibility in it. पर हाँ, हम ये भी बात बोल सकते हैं कि लाना डेल रे जैसे आर्टिस्ट ने ये अपनी एक ब्रांड इमेज बना रखी है. And that is how they sell their music. But is it really that? Since centuries, people have used art to express their negative emotion and channel them in a creative way. Francisco de Goya, Vincent van Gogh, Edward Munch, Frida Kahlo, Mark Rothko, ये सारे आर्टिस्ट बहुत फेमस हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे आर्ट पीसेस बनाए हैं जो हम आज तक याद रखते हैं और आने वाली सारी जनरेशंस याद रखेंगी. लेकिन all these artists were sad. Leonardo da Vinci's father was a well-off notary. Michelangelo descended from a family of bankers. Edward Maner's parents were a judge and the goddaughter of a Swedish prince. तो ऐसा क्यों है कि सारे के सारे आर्टिस्ट इतने well-off बैकग्राउंड से हैं? कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से क्यों नहीं है? क्या जो नॉर्मल बैकग्राउंड के आर्टिस्ट थे उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला? क्या हुआ उनके साथ? क्या नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग आर्टिस्ट नहीं बनते? Is art only restricted to the wealthy people? Art is a luxury. Only a few can afford. एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देते हैं और उस बच्चे की आगे जाके 30,000 से 50,000 तक की नौकरी लगती है. अब उतने पैसे में उसको अपनी फैमिली, अपने मेडिकल बिल्स, अपनी एजुकेशन लोन और बाकी सारे खर्चे निकालने हैं और वो जॉब भी कंटिन्यूअसली करनी है. और इतने सारे बर्डन में अगर उस बेचारे को एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया तो does he have the luxury to take a break or does he have the luxury to afford a therapist to cure himself? COVID-19 के टाइम पे जब हम सब लोग अपने घर में क्वारंटीन थे because that was the need of the hour और सरकार ने ये मेक श्योर किया था कि सब ऐसा ही हो, तब भी कुछ लोग थे जो शहरों के बॉर्डर पे झुंड बना के घूम रहे थे. उनको बीमारियां हो भी रही थी, वो कोविड से इफेक्ट होके मर भी रहे थे, पर तब भी उन्होंने वो करना छोड़ा नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो गांव से आए हुए वो मजदूर थे जो शहरों में काम करते हैं और अब उन्हें शहर से वापस गांव जाना था. वो क्या करें? शहर में रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और उनका एकलौता घर गांव में है. उनको कैसे न कैसे करके वहां तक पहुंचना तो होगा. ना उनके पास साधन है, ना उनके पास पैसे हैं जिससे वो कंफर्टेबली क्वारंटीन होकर जा सके. और इसी तरह व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, more than 90% of the population of India cannot pay for their mental health diseases. एक एवरेज इंडिविजुअल को 25 से 30 सेशंस चाहिए होते हैं अपने मेंटल वेलबींग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने के लिए. And as per a survey from 2019, only 7% of Indians can actually afford that. और जब बात इंडियन जनरेशन Z की आती है, we do have the benefit जो हमसे पहले की जनरेशन के पास नहीं था. मानो ना मानो, इंडियन जनरेशन Z has a pretty affluent and comfortable life as compared to the previous generations. और with every new generation, life only gets more comfortable and better. Artists like Shakespeare and Van Gogh did have a very comfortable and affluent lifestyle. They were rich, but they had a sad life. Maybe comfort does come at an expense.
एक्सपेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ. टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस टॉपिक पे बहुत टाइम लगा के रिसर्च करा और मुझे नहीं मिला आंसर कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअली रीजन क्या है. पर मुझे इतना जरूर पता है, व्हेन आई वाज हैविंग इश्यूज, मेकिंग वीडियोस वाज माय क्रिएटिव आउटलेट एंड इट हेल्प्ड मी इमेंसली. सो क्रिएटिविटी a lot of times is the answer to the problems we have in our head. पर हाँ, इन सब के बाद एक क्वेश्चन जरूर निकला. Are we really aware or are we just sensitive? Why do you create? To make, to mess, to see, to breathe, to bleed, to boast, to give, to receive, to destroy, employ new techniques, to speed up, slow down, ground yourself in the now, to admit, admire, address your inner fire, to forget, to defeat, to forgive, to repeat.